Hi everyone, welcome to my channel. So, as in the previous session, we have covered half of the chapter, chapter 1 components of food. So, in today's session, basically, first I would be doing recap of what I have told in the previous session and then possibly हम आगे move करेंगे, ठीक है, जो बचा हुआ चैप्टर सेशन. तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या स्टडी किया था लास्ट सेशन में. आई हैव प्रिपेयर्ड दिस नोट फॉर यू. लेट मी नो अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आई कैन शेयर इट विथ यू. लेट मी नो. ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टुडेज सेशन. So the first of thing which we have studied is that there could be different types of meals in our food. In different state we can have different types of meals. Then the second most important topic or the point which could come in your exam is define nutrients. Yeah, what is nutrients? So you need to define it like we have studied in the last session that each dish is basically made up of one or more ingredients which we get either from plants and minerals, and in addition these foods also contain dietary fibers and water which are also very essential for our body. So you need to define the whole term this as nutrients. So this is called as nutrients. So what do you mean by nutrient? That each dish is basically made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. In addition, food also contains dietary fibers and water which are also needed by our body. Now the next point is the that in nutrients, what all things come under nutrients? Carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, dietary fibers. These all things comes under basically nutrient, dietary fibers and water. So basically now what we are going to study is हम एक एक करके ये सारे जो nutrients हैं इनके बारे में study करेंगे कि what are these used for, why are they important, इनके sources क्या हैं, ये सब एक बार हम recap करते हैं. तो जो मेन जो पहला कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज फाउंड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में कि basically how are carbohydrates found in our body. So they are basically found in the form of starch and sugar. Okay, then the next topic is that we have studied an activity that is related to the test for starch. So हमने क्या स्टडी किया था कि हम फूड में बेसिकली क्या मिक्स कर देंगे, a dilute iodine solution, and if the color changes to blue black that means starch is present. Okay, so for to have the starch in the food, what should be the color? Color should be blue black. Okay, now moving to our next test which is test for proteins. So in this what we would do is we would basically mix our food with 2 drops of copper sulfate and 10 drops of caustic soda, and then if the color changes to violet then we can say that yes, this food has protein, otherwise protein is missing from this food. Okay, moving to our next test which is related to fats. सो फैट्स में क्या होता है कि हम बेसिकली रैप कर लेंगे अपने फूड को एक पेपर से और उसको फिर क्रश करेंगे, and then we would open it very carefully, and then we would try to observe that if there is any oily patch, if the oil is present on the paper in which the food was wrapped, तो इसका मीन्स उसमें फैट प्रेजेंट है, अदरवाइज फैट इज एब्सेंट. ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, व्हाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट. So the first point is that carbohydrates and fats, why are they important? Because they give us energy. Carbohydrates और fats दोनों ही हमें क्या बॉडी को देते हैं, एनर्जी. they give us energy but fat give us more. if अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि ठीक है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों ही एनर्जी देते हैं बट इनमें से कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, then what you need to say is fats.
फैट्स गिव अस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं, सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी होगा बट एनर्जी हमें कौन देगा, दो कार्बोहाइड्रेट और फैट हैं बट एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन देगा, दोनों ही एनर्जी देते हैं पर सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट्स। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट थिंग विच इज़ रिलेटेड टू फूड कंटेनिंग। अब हमें ये तो पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एनर्जी देते हैं, बट नाउ इफ अ फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स देन दे आर बेसिकली कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। क्योंकि ये एनर्जी देते हैं तो इसीलिए जिस फूड में भी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होंगे प्रेजेंट उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड्स। या आपसे क्वेश्चन में पूछा सकता है कि फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड डैश, then what you need to write is you need to write energy giving foods. Remember it always. Now source of carbohydrates. So basically carbohydrates के sources क्या होते हैं, they are basically rice, बाजरा, wheat, potato, maize, sugarcane, mango, melon, papaya and sweet potato. So these are all the sources of carbohydrates जिनके थ्रू हमको एनर्जी मिलती है बॉडी में. ओके, नाउ कमिंग टू द सोर्स ऑफ फैट्स. सो इन फैट्स व्हाट हैपन इज ना, हमारे पास हमें सोर्स जो है ना उसके दो होते हैं, एक प्लांट सोर्स होता है, एक एनिमल सोर्स. व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स? बेसिकली प्लांट सोर्स वो होते हैं जो कि सोर्सेज जिनका जो हमें मिलते हैं थ्रू द प्लांट्स, and animal sources are the food which we get from animals. Okay, तो फैट्स, प्लांट सोर्स फैट्स कौन से होते हैं, नट्स, ग्राउंड नट्स, तिल. दीज आर प्लांट सोर्स फैट्स. एंड एनिमल सोर्स फैट्स कौन से होते हैं, फिश, एग, मीट. दीज थ्री आर एनिमल सोर्स फैट्स. रिमेंबर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल सोर्स फैट, देन यू नीड टू मैंशन आइदर फिश आप मेंशन करो, एग मेंशन करो या मीट. बट इफ़ यू मेंशन नट्स, ग्राउंड नट्स, तिल, तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझे एनिमल सोर्स फैट्स का एक एग्जाम्पल चाहिए. इन द सेम वे अगर पूछा जाता है प्लांट सोर्स फैट का एक एग्जाम्पल चाहिए तो व्हाट यू नीड टू राइट, यू नीड टू राइट एज नट्स, ग्राउंड नट्स और तिल. ओके, now coming to our next point which is proteins. So what are proteins? Basically why they are important for our body, because they are needed for growth and repair in our body. जो हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है ना, जैसे बच्चे होते हैं फिर उनकी हाइट बढ़ रही होती है, ग्रोथ रिपेयर हो रही होती है हमारी बॉडी फ्रॉम इंजरीज. इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, बॉडी को चाहिए होता है प्रोटीन. इफ़ यू वुड ईट प्रोटीन थिंग्स देन ग्रोथ भी प्रॉपरली होती है. ठीक है, तो प्रोटीन्स आर वेरी मच एसेंशियल फॉर, चाहे वो चिल्ड्रंस हो चाहे वो किसी भी एज के पर्सन हो, बट फॉर चिल्ड्रंस प्रोटीन्स आर मस्ट. सो प्रोटीन्स आर किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर एसेंशियल और नीडेड बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इन आवर बॉडी. एंड फूड लाइक द सेम, जैसे हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स में, क्योंकि वो एनर्जी देते हैं, तो जो फूड्स जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होंगे तो क्या कहते थे हम उनको, एनर्जी गिविंग फूड कहते थे, राइट. तो उसी तरह सेम वे में जो जिसमें भी ये प्रोटीन्स, जो फूड्स जिसमें ये प्रोटीन्स पाए जाएंगे, फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स, उनको हम क्या कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स. क्योंकि ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना प्रोटीन, तो हम फूड्स को क्या कहेंगे, जिसमें भी प्रोटीन होगा हम उसको कहेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड्स. अब प्रोटीन में भी सेम होता है, जैसे फैट्स में हमने पढ़ा था ना कि दो सोर्सेज होते हैं, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स. इन द सेम वे प्रोटीन्स में भी दो सोर्सेज होते हैं, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स. नाउ एग्जांपल ऑफ प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स के एग्जांपल अगर पूछ दिया कि ठीक है नेम 2 प्लांट सोर्स प्रोटीन्स, तो यू शुड मेंशन आइदर ऑफ दीज, जैसे मूंग, ग्राम, पीस, सोयाबीन, बीन्स, तुअर दाल, इसमें से कोई भी आप 2 मेंशन कर सकते हो. इन द सेम पे अगर एनिमल सोर्स प्रोटीन्स पूछ लिया तो आप क्या मेंशन कर सकते हो, फिश, पनीर, एग्स, मीट. दीज आर एनिमल सोर्स प्रोटीन्स. ओके, नाउ कमिंग टू वाइटामिन्स. सो वाइटामिन्स किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज. ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं
अगेंस्ट डिसीजेस के, अगर कोई बीमारी हो गई तो कौन हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमें प्रोटेक्ट करते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स इसके साथ साथ हमारी आइज, बोन्स, गम्स और टीथ को भी हेल्दी रखते हैं। तो वाइटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। दे कीप आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स ऑल्सो हेल्दी। ओके, सो ये अभी तक हमने बेसिकली कवर कर लिया कि हाँ कुछ कौन कौन से फैट्स होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं उनके। इन द सेम वे कार्बोहाइड्रेट्स, उनको फूड जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होगा तो उनको क्या बोलते हैं, फूड जिसमें कि प्रोटीन्स होते हैं उनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। उनके सोर्सेज क्या हैं, प्लांट सोर्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, एनिमल सोर्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। और वाइटामिन हमने पढ़ लिया कि हाँ वाइटामिन क्यों इम्पोर्टेंट या उनका रोल क्या होता है। दे बेसिकली हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेस। और इसका एक और काम क्या होता है कि ये बेसिकली आपकी आइज, आपके बोन्स, गम्स, टीथ को हेल्दी रखने का काम करते हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब वाइटामिन्स कोई हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के वाइटामिन्स हैं जो कि एसेंशियल भी हैं। ये सारे ही वाइटामिन्स हमारी बॉडी को चाहिए। ये नहीं कि ठीक है आप एक विटामिन दे दो नेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता है। हमें ये सारे वाइटामिन्स चाहिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल हो गया विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के। दीज आर फ्यू ऑफ द विटामिन्स विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और इनके कुछ सोर्सेज भी होते हैं, जैसे विटामिन ए के सोर्स हो गए पपाया, कैरेट, मैंगो। विटामिन बी के सोर्सेज हो गए बीट, राइस। विटामिन सी के सोर्सेज हो गए ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, टमाटो, लेमन, ग्रीन चिली, गुआवा। दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। देन विटामिन डी, विटामिन ई के सोर्सेज हो गए मिल्क, एग, फिश। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाइटामिन्स इन जो कि हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं। अभी हमने ये रीड कर लिया। अभी आज के सेशन में हमारा कुछ जो लास्ट का टॉपिक रह गया था डेफिशिएंसी डिजीज, उसमें हम कवर करेंगे कि इन केस अगर ये विटामिन एब्सेंट है तो इनका रोल क्या होता है। अगर ये विटामिन सी नहीं प्रेजेंट है तो उसकी वजह से आपको क्या डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। उस डिसीज़ को क्या बुलाते हैं, उसको रिकवर कैसे किया जाता है, मतलब ये हम आज के सेशन में ये टॉपिक्स कवर करेंगे कि डेफिशिएंसी डिजीज़ वाला, ठीक है। अभी कमिंग टू आवर नेक्स्ट थिंग, व्हाट वी हैव रेड इन यस्टरडे सेशन वाज अबाउट मिनरल्स ऑल्सो, कि मिनरल्स क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। मिनरल्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी हमारी बॉडी के लिए नीडेड है। मिनरल्स आर नीडेड इन आवर बॉडी इन स्मॉलर अमाउंट एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। सो अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी, तो आप क्या मेंशन कर सकते हो उसमें आप मेंशन करोगे विटामिन का भी नाम और उसमें मिनरल का भी नाम, क्योंकि विटामिन भी क्या करता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है गुड हेल्थ के लिए, ठीक है। तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स का एक और नाम है, ये भी हमने डिस्कस किया था, विच इज़ नोन एज रफेज। सो डाइटरी फाइबर्स को हम एक और नाम से कहते हैं जिसको हम कहते हैं रफेज, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ रफेज नोन एज, या डाइटरी फाइबर्स को इज़ नोन एज, कुछ भी वाइस वर्सा कुछ भी पूछा सकता है कि डाइटरी फाइबर्स को क्या बोला जाता है या फिर रफेज को क्या बोला जा सकता है। तो यू शुड नो डाइटरी फाइबर्स का एक और नेम है रफेज एंड इट इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। ये बेसिकली किससे प्रोवाइडेड होता है, प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल हो गए होल ग्रेन्स हो गया, पल्सेस हो गए, पोटैटोज हो गया, फ्रेश फ्रूट एंड vegetables. So these are all examples of dietary fibers. Now roughage. So roughage क्या करता है, roughage basically does not provide nutrient to our body. roughage जो है जैसे अब तक हम जितने हमने पढ़े थे ये सब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे थे, बट roughage does not provide nutrient to our body. It is, but then also ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता बॉडी को, then also it is very essential for our body, ठीक है। ये वेरी एसेंशियल हमारी बॉडी के लिए है, इसलिए इसको फूड में रहना मस्ट है कि जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें ये रफेज भी हो प्रेजेंट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड जैसे हम जो फूड खा रहे थे उसमें बहुत सारा फूड ऐसा होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं कर पाती बॉडी, जिसकी वजह से हमें कई सारी डिसीजेस होती हैं, ठीक है। तो ये जो रफेज होता है उसका वर्क होता है दिस हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ दोज अनडाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्ट नहीं कर पाई है बॉडी, ये उससे हमें रिड ऑफ करवाता है
एलिमिनेट करता है ये उन फूड को हमारी बॉडी से। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट वॉज वाटर। सो वाटर इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ये हमने डिस्कस भी किया था, यू शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली। नाउ व्हाट वाटर डज इज वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। जो भी हम बेसिकली फूड इनटेक कर रहे हैं, वाटर हेल्प करता है कि आप वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है फूड में से। तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग वेस्ट। जो भी वेस्ट पार्टिकल होता है हमारी बॉडी में, उसको ये थ्रो आउट करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या स्वेट के थ्रू, ये उन वेस्ट पार्टिकल्स को एलिमिनेट करता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द बैलेंस डाइट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही है, आपके स्कूल में आ सकता है, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट या एक्सप्लेन बैलेंस डाइट। So you should know the definition of balanced diet. So basically what is balanced diet is for the proper growth and maintenance of good health. हमारी growth के लिए and maintaining the good health, a diet should have all the nutrients हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए जो हमारी बॉडी को चाहिए, दैट टू इन राइट क्वांटिटीज। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, for growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body need in right quantity, not too much of it and not too little. ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। देन इस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहेंगे। आप सोच रहे हो आप ये लाइन लिख के बस नंबर मिल जाएंगे, नहीं। बैलेंस डाइट में ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, द डाइट शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। सो हाउ डू यू राइट इट? फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity, not too much of it and not too less of the other. Also the diet should contain good amount of roughage and water, then those diet is called balanced diet. Now एक last point है, ये हमने रीड भी किया था, ये आ सकता है व्हाट इज़ ओबेसिटी, या फिर ये पूछा सकता है ईटिंग टू मच ऑफ फैट फूड वुड लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड डैश। तो यू शुड नो, अगर आप ज़्यादा फैट फूड खाते हैं तो उससे क्या आपको कंडीशन हो सकती है? ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट लीड्स टू दैट कंडीशन, या ओबेसिटी क्या हो सकता है? अगर आप ईट टू मच ऑफ फैट फूड, यू आर ईटिंग टू मच ऑफ फैटी फूड्स, देन दैट वुड लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। गॉट इट? ठीक है, तो ये था रिकैप। नाउ वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेशन।